बोलिए लाडली लाल की जय. We'll continue with the Bhakti Shatak, Doha number 83. Jai Radhe Krishna Radhe 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 Krishna Radhe. 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 Jai Radhe Jai Radhe. Radhe Jai Radhe Jai Radhe. Krishna Jaya Krishna Jaya Krishna. Krishna Jaya Krishna Jaya Krishna. Jai Radhe Krishna Radhe 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 Krishna Radhe. Jai Radhe Krishna Radhe 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 Krishna Radhe. Jai Radhe Krishna Radhe 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 Krishna Radhe. The last couple of dohas that we looked at concerned feelings of humbleness towards Shri Krishna and dependence on his gracious kindness. This is part of the foundation of bhakti. On other paths, you don't solely depend on God's graciousness. On the path of yoga, on the path of gyan, on the path of karma,
there are other very important requirements that have to be met. There are practices that have to be strictly adhered to. On the path of bhakti, the main thing is humbleness. It's also called surrender. It's also called exclusivity. But humbleness is really all that's required. If anyone feels 100% humble in front of God, then they will automatically surrender to Him, and they'll instantly receive His grace, and then you're God realized. There's nothing more to do. So here in this doha as well, Shri Kripaluji Maharaj has referred to one of Shri Krishna's titles that it's related to his graciousness. So he has one title, Patit Pavan. Pavan means one who purifies, and Patit means someone who's sinful. So he has a title meaning he's the purifier of the sinful souls. He's the purifier of fallen souls. On the path of bhakti, humbleness and confidence go hand in hand. We both acknowledge our fallen state, but simultaneously we have confidence in Shri Krishna's kindness, that, I accept the fact I'm completely fallen. We may even say, I have no good qualities. I have no qualities of a good devotee, but I accept my fallen state, and I know that's all I have to do in order to receive your grace. This is part of the greatness of the path of bhakti. So here, showing in this doha, Kripaluji Maharaj shows both sides, the humbleness, but also the confidence in Shri Krishna and the closeness that a devotee feels with Shri Krishna. So he says, Nama patit pavan suni nirbhaya huay kiya pap. When I heard that you were called Patit Pavan, then I became fearless and I started doing sins with no fear of anything, because I knew that you are Patit Pavan, so no matter how many sins I do, you will clean me, you will uplift me, you will accept me. Ya main dosh batau mam doshi to hain aap. So where is my fault in all of this? So simultaneously the devotee is admitting that I've done nothing but sins, but he's blaming Shri Krishna, that it's your fault because you have this title, Patit Pavan. If you didn't have that title, I wouldn't have been so ready to do so many sins. I would have at least felt some hesitation to do sins, but knowing that you are Patit Pavan, I have complete confidence in you. So I went on doing as many sins as I wanted. Of course, you understand that this is, Kripaluji Maharaj is not actually making an excuse for us. It's a way of showing that the devotee both feels extremely humble, but extremely close to Shri Krishna. He has utmost confidence in Shri Krishna. So there's no feeling of depression or being disheartened that, oh, I'm bad. I'm such a bad devotee. I'm not worthy of Krishna's grace. That's what he's showing in here, that you have to be the opposite of that. You admit that you're bad, but you have total confidence that no matter how bad someone is, Shri Krishna will instantly accept them if they come to him. तो इस दोहे में दीनता का विषय फिर आया है, पिछले 2-3 दोहे में भी आया था. दीनता, विनम्रता भक्ति का आधार है. दूसरे मार्गों में जैसे ज्ञान मार्ग, योग मार्ग, कर्म मार्ग, जो इस मार्ग का अवलंबी है,
उसके पास कुछ और स्किल्स होना चाहिए। कर्म में इतने कड़े कड़े नियमों का पालन करना पड़ता है, ज्ञान में, योग में बहुत ऊंची कक्षा का वैराग्य चाहिए, मन पर कंट्रोल चाहिए। लेकिन भक्ति में केवल नम्रता, दीनता चाहिए। वो दीनता क्या है? वो ये दीनता है कि हम मान लें कि मैं पापी हूँ, अनंत काल से मैंने पाप ही पाप किया है, तो मैं मान लेता हूँ कि मैं बुरे से भी बुरा हूँ। ये नम्रता, ये दीनता ज़रूरी है भक्ति में। और जो भी ये मानता है, श्री कृष्ण उनको स्वीकार करते हैं, उन पर कृपा करते हैं, और कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। बस अपने आप को पतित मानना है, दीन बनना है, बस वही चाहिए। लेकिन दीनता के साथ साथ उनकी कृपा पर भी विश्वास बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि हम सोचें हाँ मैं बहुत पतित हूँ, दीन हूँ, अधम हूँ, तो ऐसे जीव को श्री कृष्ण क्यों स्वीकार करेंगे, वो हमारी ओर क्यों देखेंगे? नहीं देखेंगे, कृपा नहीं करेंगे, मैं तो कृपा का अधिकारी है ही नहीं हूँ। ऐसा निराश नहीं होना चाहिए, वो भक्ति है ही नहीं। निराश होना भक्ति नहीं है। ये दीनता के साथ साथ पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि हाँ मैं ऐसा हूँ, लेकिन वे तो पतित पावन हैं, वे मुझे तुरंत स्वीकार करेंगे जैसे ही मैं अपने आप को दीन मानता हूँ। तो ये भक्ति है। इस दोहे में ये आइडिया स्पष्ट कर रहे हैं श्री कृपालु जी महाराज, विनोद में कह रहे हैं कि देखिए श्री कृष्ण, आपका एक नाम है ना पतित पावन, तो वो नाम सुनकर मैं ऐसे फूल गया हूँ कि हाँ मेरे स्वामी तो पतित पावन है, तो मेरे कोई डर नहीं है, पाप से भी डर नहीं है, क्योंकि अधम से भी अधम, बुरे से भी बुरे वो स्वीकार करते हैं। इसलिए निर्डर, निर्भय होकर मैं धुआंधार पाप कर रहा हूँ, कोई डर नहीं, क्योंकि आप मुझे स्वीकार कर लेंगे उस अवस्था में भी। तो मैं मान लेता हूँ कि मैं पापी हूँ और मैं पाप ही पाप करता हूँ, अनादिकाल से वही किया जा रहा हूँ, मन माना। लेकिन दोष किसका है? दोष तो आपका है। यदि आपका नाम पतित पावन नहीं होता तो मैं निर्भय होकर पाप नहीं करता, कम से कम थोड़ा तो संकोच रहता। लेकिन संकोच क्या, इसलिए मैं ऐसे निर्भय होकर पाप कर रहा हूँ। तो ये आप समझ गए होंगे कि कृपालु जी महाराज ये नहीं कह रहे हैं सचमुच कि हाँ ऐसे आंखें बंद करके पाप किया करो, लेकिन ये स्पष्ट कर रहे हैं, ये प्रकट कर रहे हैं ये भावना कि भक्ति में दोनों होना आवश्यक है। कि हाँ मैं मानता हूँ मैं पतित हूँ, लेकिन साथ साथ उन पर पूर्ण विश्वास हूँ कि जितना भी बुरा हूँ वो स्वीकार कर लेंगे। लेकिन हमको पहले तो, जैसे मैंने कल समझाया था, हमको मानना है कि ये पतित पावन हैं। उनमें जैसे ही हमने पूर्ण विश्वास किया है वैसे ही कृपा कर लेंगे, कोई डिले नहीं होगा उनके साइड से। तो ये आशा है, ये आशय है इस दोहे का।
जय राधे कृष्ण राधे 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 कृष्ण राधे। 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 जय राधे जय राधे। राधे जय राधे जय राधे। कृष्ण जय कृष्ण जय कृष्ण। कृष्ण जय कृष्ण जय कृष्ण। नाम पतित पावन सुनी निर्भय हुए किय पाप राधे राधे। पतित पावन सुनी नाम पतित पावन सुनी निर्भय हुए किय पाप राधे राधे। पतित पावन सुनी या में दोष बताऊ मम दोषी तो हैं
राधे। जय राधे कृष्ण राधे 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 कृष्ण 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 राधे। मंजीरे इसमें एक लय रहना चाहिए। मैं बदलता रहता हूँ, गाना ढोलक और मंजीरा एकदम सेम रहना चाहिए। जब मैं जय राधे कृष्ण तो आराम से आप बजाते हैं, लेकिन इट्स द सेम, द होल रेस्ट इज द सेम, तो कुछ बदलना नहीं है। लगता है कि कुछ बदलना है, नहीं बदलना है। आगे वाले दोहे में श्री कृपालु जी महाराज कर्मयोग का विषय स्पष्ट करते हैं। कर्मयोग सभी जानते हैं कि ये गीता की फिलॉसफी है। किसी से भी पूछो गीता में क्या लिखा है, सब बताएंगे कर्मयोग। और किसी से भी पूछो कि क्या आप कर्मयोग करते हैं, हाँ कर्मयोग करता हूं, मैं कर्म करता हूं। लोग कर्म और कर्मयोग एक समझते हैं, ये अलग अलग हैं। गीता में 4 तरह का कर्म बताया गया है: कर्म, विकर्म, कर्मयोग और कर्म संन्यास। कर्म और विकर्म में मन संसार में आसक्त रहता है, और कर्मयोग और कर्म संन्यास में मन भगवान में आसक्त रहता है। तो कर्म और विकर्म में अंतर क्या है? कर्म ये है जो धर्म के अनुसार है, जो वेदों के अनुसार कर्म है, वो कर्म है। जो वेद के विपरीत है, जो अधर्म है, उसको विकर्म कहते हैं। तो कर्म का फल है स्वर्ग, नश्वर है। ये तो आपको बहुत बार बताया गया है कि कर्म से भगवान नहीं मिलते, क्योंकि मन तो संसार में आसक्त है। तो ठीक है, धर्म का पालन हो रहा है, लेकिन क्योंकि मन संसार में आसक्त है, इसलिए संसार में ही जन्म लेना पड़ेगा। तो कर्म मुक्ति नहीं दिला सकता है और भगवत प्राप्ति भी नहीं दिला सकता है। याद रखिए, कर्म का मतलब है मन संसार में है, मन संसार में आसक्त है, और किसी संसारी आशा से हम कर्म कर रहे हैं कि इस अच्छे कर्म, इस पुण्य करने से मुझे ये मिलेगा, या तो इस जीवन में या अगले जन्म में या स्वर्ग में हमको कुछ संसारी चीज़ चाहिए, या संसार में आसक्त हैं, संसारी सुख चाहिए, इसीलिए हम ये कर्म कर रहे हैं।
ये है कर्म। और यदि हमने वेदों का नियम का पालन ना करके मनमाना किया है, उसको विकर्म कहते हैं, उसका परिणाम है नरक। तो दोनों कर्म और विकर्म का फल नश्वर है, दोनों बंधन कारक हैं, दोनों माया का बंधन में रखते हैं। तो कर्म योग और कर्म संन्यास में क्या अंतर है? कर्म योगी और कर्म संन्यासी दोनों का मन भगवान में आसक्त है, दोनों भगवत प्राप्ति का लक्ष्य रख कर अपना कर्म करते हैं। तो उनमें अंतर क्या है? कर्म संन्यासी क्या करते हैं? वो संसार माने संसार, गृहस्थ वाला संसार छोड़ के भगवान में अपना मन लगाते हैं, भक्ति करते हैं, लेकिन संसार में इन्वॉल्व नहीं है। वो उसको भी खाना होता है, सोना भी, वो सोता भी है, खाता भी है, पीता भी है, लेकिन उसकी कोई फैमिली नहीं है, ये मानो। और कर्मयोगी क्या करता है? वो भी भगवान में अपना मन लगाता है, लेकिन वो शरीर से संसार में इन्वॉल्व्ड है। तो वो शरीर लगाता है संसार में, वो अपने बच्चों से, अपने पति से या अपनी स्त्री से, अपने माँ बाप से जो भी कर्तव्य है वो करता है कर्मयोगी, लेकिन मन भगवान में रखता है। तो दोनों कर्मयोगी और कर्म संन्यासी, उन दोनों को एक ही फल मिलता है, भगवत प्राप्ति, माया निवृत्ति। दोनों माया निवृत्ति और भगवत प्राप्ति मिलता है, लेकिन बाहर से अंतर है कि एक तो चला गया जंगल में या आश्रम में और अपनी वो भक्ति कर रहा है, भगवान में मन लगा रहा है, और कर्मयोगी संसार में काम कर रहा है, कर्तव्य कर रहा है, लेकिन मन भगवान में है। तो जो कहता है, आमतौर से लोग ये समझते हैं कि मैं तो अपना कर्तव्य करता हूं और मन माँ बाप, बेटा, स्त्री, पति में आसक्त है और किसी को दुख नहीं देता है, झूठ नहीं बोलता हूं, वो समझता है कि मैं कर्म योग कर रहा हूं। सभी, लगभग सभी समझते हैं कि कर्म और कर्म योग में कोई अंतर नहीं है। मैं अच्छा कर्म कर रहा हूं, वही तो लिखा है गीता में, तो मैं कर्म योगी हूं। नहीं, वो उसका उल्टा लिखा है गीता में कि कर्म से स्वर्ग मिलेगा। ये कर्म योगी नहीं है जो कर्म करता है और अपना मन अपनी फैमिली में या कहीं संसार में लगाता है। कर्मयोगी यही है जो भगवान में अपना मन लगाता है, मन भगवान में आसक्त है, भगवान वाला सुख चाहता है और शरीर से कर्म कर रहा है, ये कर्मयोगी है। तो इसलिए कृपालु जी महाराज यहाँ लिखते हैं कि मन हरि में तन जगत में कर्मयोग ते ही जान। सीधी सी बात है, मन भगवान में, तन संसार में, ये कर्मयोग है। और उसका उल्टा, तन हरि में मन जगत में, यह महान अज्ञान। आमतौर से ये भी करते हैं लोग, लगभग सभी शरीर से भक्ति करते हैं, शरीर से पूजा कीर्तन पाठ करते हैं, लेकिन कोई नहीं सोचता
कि क्या मेरा मन भगवान में है? नहीं, सब समझते हैं कि मन तो अपनी ही फैमिली में रखो, संसार में ही आसक्ति रखो और पूजा पाठ कीर्तन जप वगैरह करो। ये तो महान अज्ञान है, ये कह रहे हैं कृपालु जी महाराज। हम तो एक तरह कर्मयोग कर रहे हैं, लेकिन उल्टा, एकदम उल्टा। तन भक्ति में, तन भगवान के लिए हम कुछ कर रहे हैं और मन संसार में, संसारी सुख ढूंढ रहे हैं और भगवान से भी वही मांग रहे हैं। भगवान मैं ये करूँगा, ये अनुष्ठान करूँगा, इतना जप करूँगा, इतनी बार मंदिर जाऊँगा, इतनी बार रामायण पाठ करूँगा, इतनी बार गीता का पाठ करूँगा, भागवत का पाठ करूँगा, और आप ये दे दीजिए मुझे। ये व्यापार हम करते हैं भगवान के साथ। तो ये महान अज्ञान है। ये ऐसी बात हुई कि हम चप्पल की दुकान जाने के बजाय हम मिठाई की दुकान गए और चप्पल मांग रहे हैं। यानी ये संसार दुख का स्वरूप है और हम आनंद स्वरूप भगवान से संसार मांग रहे हैं। ये महान अज्ञान है। लेकिन लगभग 99.9% लोग यही करते हैं, समझते हैं कि बस अपना कर्तव्य करो, पूरा मन की आसक्ति संसार में ही रखो, लेकिन शरीर में थोड़ा बहुत पूजा पाठ भी करो तो भगवान भी खुश रहेंगे। ये फिलॉसफी नहीं है हमारे शास्त्र वेदों का, ये सिद्धांत नहीं है। सिद्धांत बड़ी सीधी सी है कि मन हमेशा भगवान में रखना है। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च मय्यर्पितमनो बुद्धि। श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से गीता में कि मयि अर्पित मनः बुद्धि, मन और बुद्धि मुझे दे दो। उन्होंने शरीर नहीं मांगा, उन्होंने कहा मन दे दो मुझे। यानी हमेशा मेरा स्मरण करना और युद्ध कर, अपना कर्तव्य करो। तो ये कर्मयोग है। ये बहुत स्पष्ट लिखा है हमारे वेद शास्त्र में, लेकिन फिर भी लोग नहीं समझ पाते। इसलिए कृपालु जी महाराज फिर से हमको याद दिला रहे हैं कि हमेशा अपना मन भगवान में रखना है और उसके साथ साथ अपना कर्तव्य करना है। ये गीता की फिलॉसफी है, ये कर्म योग है। और यदि हम उल्टा करते हैं, हम केवल शरीर से भगवान की आराधना करते हैं और कभी मन नहीं लगाते हैं भगवान में, हमेशा संसार में ही लगाए रहते हैं, तो ये महान अज्ञान है। उससे न माया निवृत्ति मिलेगी, न भगवत प्राप्ति मिलेगी, न आनंद प्राप्ति मिलेगी। संसार का, माया का बंधन ही रहेगा इससे। इसलिए ये बात समझना बहुत ज़रूरी है। So I'll just briefly recap in English that in this Doha, Shri Kripaluji Maharaj has once again clarified this very important point, that Karma Yoga means having your mind in God, and your body can be involved in all the worldly duties, work, family, all the school, whatever our duty happens to be. Our body has to be involved in that. But that is only karma. If we're just doing it with our body and our mind is also attached in that, or attached in the world, with a desire to receive worldly happiness, then that's not karma yoga. It's just karma. It's good karma.
But the result of doing good karma is also mayic. It results in rebirth in this world. True Karma Yoga means having the mind in God while we perform all of our worldly duties. In other words, He has to be our goal, and all of our actions should be performed to please Him, to make Him happy. Any action done with that goal in mind is Karma Yoga. So we have to keep Him in our mind while we perform our actions. This is Karma Yoga, and the result of Karma Yoga is attaining Shri Krishna. And if we do the opposite, which many people do in this world, if we worship God physically but keep our mind in the world, then this is the exact opposite of Karma Yoga, but it's almost like a type of Karma Yoga. We're keeping our mind occupied in some form of we're keeping our body occupied in some form of external worship, but our mind is somewhere else completely. Our mind is not in God, it's in the world. Then this is upside down Karma Yoga. This is the opposite Karma Yoga, and the result of that will only be the attainment of the world. It is not considered real bhakti, it is not considered real Karma Yoga, and it doesn't result in God realization. So we should always remember that it's our mind that has to be in God while we perform our worldly duties, and also while we do bhakti, while we do puja or any form of devotion to God, at that time also our mind has to be in God. Then only it will be considered as bhakti. So we'll sing this doha now. Jai Radhe Krishna Radhe 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 Krishna Radhe. 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 Jai Radhe. Jai Radhe. Radhe, Jai Radhe, Jai Radhe. Krishna, Jaya Krishna, Jaya Krishna. Krishna, Jaya Krishna, Jaya Krishna. मन हरि में तन
जगत में कर्म योग ते जान राधे राधे। मन हरि में तन जगत में कर्म योग ते जान राधे राधे। तन हरि में मन जगत में यह महान अज्ञान राधे राधे। तन हरि में मन जगत में यह महान अज्ञान राधे राधे। जय राधे कृष्ण राधे 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 कृष्ण 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 राधे। In the last doha that I'll explain today, Shri Maharaj Ji makes an important point regarding the saint and God. यद्यपि हरि गुरु एक हैं, एक ज्ञान आनंद, तदपि सृष्टि कर केवल ब्रह्म सच्चिदानंद.
After God realization, God gives everything to the saint. Janat tumhi hoi jai. In the Ramayana, Tulsidas Ji says, after knowing God, after attaining God, because God gives his everything, unlimited sat, unlimited chit, unlimited anand, unlimited knowledge, unlimited bliss, he gives it to the saint. So in that way, the saint becomes equal to God. Tasmin stajjane bheda bhavat. Narad Bhakti Darshan. Narad Ji is saying, there's no difference between God and the saint. No bhed whatsoever. There's abhed between the two. The two are one and the same. The God-realized saint and the soul have become one. That is why it is even said in the Vedas, Yasya deve para bhaktir yatha deve tatha gurau tasyaite kathita hyartha prakashyante mahatmanah. You should think of God and Guru. Guru, the true God-realized saint. Think of God and Guru as one, and the same bhakti you have for God, have the same bhakti for the Guru. Then you will yourself become God-realized. So, in many ways, in almost every way, the saint and God have become one. There are still some differences. For one, God's body is not different from his soul. God does not have a body and soul duality. God is his body. The soul is not the body, right? Soul and body are two different things. Now, after God realization, what happens? Soul leaves his Mayak body and he gets a divine body made of Sat Chit Anand. But he still has a soul-body duality. His body is now made of Swarup Shakti, but his soul is still separate from that. So there is a difference between God and soul, even after God realization. And the soul doesn't cease to exist after God realization. So the soul and God don't become absolutely one. If that happened, then where would the soul be? Well, there's still a soul and God duality, even though in many ways they've become one. The soul has entered into God. The soul has now received the same Sat, Chit and Anand in unlimited amount that God has. Bhoga matra samya lingacha, Brahma Sutra says, in terms of the experience of bliss, God and soul have become equal. In terms of knowledge, equal. Everything equal, except there's one more difference. Jagad Vyapar Varjam. God doesn't give the work of Srishti to the God-realized saint. Yato va imani bhutani jayante yena jatani jivanti yat prayantyabhisam vishanti tad brahma. Taittiriya Upanishad says God is the one from whom the whole universe comes and all the souls emerge after pralay. They all emerge from God. Maya is manifested from God. The universe is manifested from God. God also upholds the existence of the universe and gives life to all the souls and keeps track of all their karma and gives them all the consequences of their karma. And then when the time of pralay has come, everything merges back into him. God does this work of srishti and pralay. He never gives this work to any soul to do. So you see, there is a little
bit of difference still between God and the God realized saint. Let me briefly explain in Hindi now. इस दोहे में कृपालु जी महाराज समझा रहे हैं कि भगवत प्राप्ति के बाद भी थोड़ा सा भेद रहता है। संत और भगवान में भेद है, अभेद भी है लेकिन भेद भी है। अभेद इसलिए है कि भगवान ने अपना सब कुछ दे दिया संत को, अनंत सत, अनंत ज्ञान, अनंत आनंद दे दिया, तो उसमें कोई फर्क नहीं है। जितना आनंद भगवान के पास है उतना ही आनंद संत के पास है। जितना ज्ञान भगवान के पास है अनंत, उतना ही संत के पास है भगवत प्राप्ति के बाद। लेकिन थोड़ा सा भेद भी रहता है। भगवत प्राप्ति होने से पहले बहुत कम भेद, मतलब उस अवस्था की अपेक्षा में अब बहुत कम भेद रहा है। पहले हमारी अवस्था देखिए, हमारे पास न अनंत आनंद है, न अनंत ज्ञान है, न अनंत जीवन है, हमको शरीर बार बार छोड़ना पड़ता है। हमारे पास कोई बड़ी शक्ति नहीं है, अल्प शक्ति है हमारे पास। तो बहुत बड़ा भेद है अभी हम और भगवान में। लेकिन भगवत प्राप्ति के बाद लगभग सारा भेद खत्म हो जाता है। फिर भी थोड़ा सा भेद रहता है। वो भेद क्या है? एक तो भगवत प्राप्ति के बाद भी हमारी आत्मा भगवान नहीं बनता, बराबर हो जाता है जरूर। लेकिन यदि हमारी आत्मा ब्रह्म हो जाए तब आत्मा कहाँ रही? तो फिर आत्मा नश्वर माना जाना, उसको नश्वर मानना पड़ेगा। वो खत्म हो गया, ब्रह्म बन गया। लेकिन सारे वेद कहते हैं कि आत्मा सदा से थी और सदा रहेगी। तो आत्मा ब्रह्म बन नहीं सकती है, ब्रह्म में लीन हो सकती है, बन नहीं सकती है। जहाँ जहाँ लिखा है कि ब्रह्म भूयाय कल्पते, भगवत्वाय कल्पते, जानत तुम ही होई जाई, जहाँ लिखा है कि आत्मा ब्रह्म बन जाता है, ये इसका मतलब ये है कि आनंद में और ज्ञान में और सत्य में बराबर हो जाता है। लेकिन बन नहीं सकता है एकदम, नहीं। तो आत्मा रहेगी, लेकिन भगवत प्राप्ति के बाद स्वरूप शक्ति वाला शरीर मिलेगा, सच्चिदानंद वाला शरीर मिलेगा। लेकिन उस अवस्था में भी आत्मा और शरीर का भेद है। भगवान को लीजिए, उनका शरीर और आत्मा का भेद नहीं है, अभेद है। उनमें आत्मा नहीं रहती, शरीर ही आत्मा है भगवान का। आत्मा शरीर ही है, कोई भेद नहीं है। इसलिए भगवान का शरीर सर्वव्यापक है। तो ये भेद है भगवान और भगवत प्राप्त महापुरुष में, ये भेद है। और एक और भेद भी है कि भगवत प्राप्ति के बाद भी कोई जीव सृष्टि का काम नहीं करता है, वो भगवान ही करते हैं, सृष्टि करते हैं। ये संसार जगत प्रकट कर देते हैं, सारे जीव प्रकट कर देते हैं। सृष्टि करने के बाद
पूरे संसार का पालन भी करते हैं, हर जीव में बैठकर चैतन्यता प्रदान करते हैं और हर एक जीव का हर एक कर्म को नोट करते हैं और उसका कर्म फल भी देते हैं। और फिर जब प्रलय का समय आ जाता है तब पूरे संसार का प्रलय भी करते हैं। ये सारा काम भगवान ही करते हैं, किसी जीव को ये काम दिया नहीं जाता है। तो ये भी भेद हमेशा रहता है। तो ये बहुत गूढ़ सिद्धांत है, ये वेदांत में भी समझाया गया है, उपनिषद में भी समझाया गया है, और यहाँ बहुत सरल हिंदी में भी श्री कृपालु जी महाराज ने ये पॉइंट स्पष्ट किया है। जय राधे कृष्ण राधे 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 कृष्ण राधे। 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 जय राधे जय राधे। कृष्ण जय कृष्ण जय कृष्ण। यद्यपि हरि गुरु एक है, एक ज्ञान आनंद राधे राधे। यद्यपि हरि गुरु एक है, एक ज्ञान आनंद राधे राधे। तदपि सृष्टिकर केवल ब्रह्म सच्चिदानंद राधे
राधे राधे। जय राधे कृष्ण राधे 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 कृष्ण 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 राधे। अलबेली सरकार की, श्रीमद् सद्गुरु सरकार की।